السلام علیکم۔ میری 14 سالہ حسین سالی کچھ دنوں کے لیے ہمارے گھر رہنے آئی۔ میں جسے بچی سمجھ رہا تھا وہ تو پوری آگ نکلی۔ میری بیوی ہسپتال میں اپنی ماں کے ساتھ داخل تھی، اسی لیے میری ساس رات کو میری سالی کو میرے پاس چھوڑ گئی۔ میں نے اسے بچی سمجھ کر اپنے ساتھ سلا لیا کہ کہیں وہ نئے گھر میں ڈر نہ جائے، لیکن اس نے تو آدھی رات کو میرے ساتھ ہی بیڈ پر رات کے 12 بجے کے قریب میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں جان گیا کہ میری سالی ندا ہی ہوگی، کیونکہ وہ اس وقت پورے گھر میں اکیلی تھی اور وہ پہلی دفعہ ہمارے گھر رہنے کے لیے آئی تھی، تو شاید اسے رات کے اس پہر ڈر لگ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ نیم برہنہ سی نائٹی پہنے دروازے پر کھڑی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی کہ ارشد بھائی، مجھے آپ کے گھر میں بہت خوف محسوس ہو رہا ہے، کیا میں رات آپ کے ساتھ آپ کے کمرے میں گزار سکتی ہوں؟ میری نظر میں تو ندا ایک 14 سال کی بچی تھی، لیکن میں پہلی بار اسے یوں دیکھ رہا تھا۔ وہ تو کسی گلاب کی کلی کی طرح تر و تازہ تھی۔ 14 سال کی عمر میں ہی اس کا بدن بھرپور جوان ہو گیا تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی ہونے کے باوجود بھی نیم برہنہ نائٹی میں اس کے جسم کا ہر حصہ واضح نظر آ رہا تھا۔ وہ میری بیوی کی چھوٹی بہن تھی۔ یہی سوچ کر میں نے اس کے وجود سے نظر چرائی اور اسے سونے کے لیے صوفے پر تکیا رکھ کر دے دیا اور خود بیڈ پر لیٹ کر موبائل چلانے لگا۔ میری شادی کو 5 سال ہونے والے تھے اور میری شادی کے وقت ندا ایک 9 سال کی بچی تھی۔ میرا اپنے سسرال بہت ہی کم جانا ہوتا تھا، اسی لیے میں ندا کو ابھی تک بچی ہی سمجھ رہا تھا، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ وہ تو پوری قیامت بن چکی ہے۔ میں موبائل میں مگن تھا اور ندا صوفے پر بھی چین لیتی تھی۔ رات کے اس پہر موبائل پر بھی ایک سے بڑھ کر ایک سامان سامنے آ رہا تھا، جس کی وجہ سے میرے سوئے ہوئے جذبات جاگ رہے تھے۔ میں نے رات کو آواز دے کر پوچھا کہ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ ندا کہنے لگی کہ ارشد بھائی، یہ صوفہ بہت چھوٹا ہے اور میرے پاؤں صوفے سے باہر جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے میں صحیح طرح سے لیٹ نہیں پا رہی۔ ندا کی بات سن کر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم بیڈ پر آ جاؤ، میں صوفے پر بیٹھ جاؤں گا۔ ندا جیسے ہی بیڈ پر آئی تو میں اپنا تکیا لے کر اٹھنے لگا، لیکن ندا نے میرا ہاتھ پکڑ کر روک لیا اور کہنے لگی کہ ارشد بھائی، آپ کیا ساری رات بیٹھے ہی رہیں گے؟ میرے ساتھ یہیں بیڈ پر سو جائیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میرے لیے ندا کے جسم سے نظریں ہٹانا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے بہت مشکل سے ندا کی بات مان کر دوسری طرف کروٹ بدلی اور موبائل چلانے لگا۔ مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ کب میری آنکھ لگ گئی۔ ابھی مجھے سوئے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ہی میری آنکھ کھلی اور میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جسے میں ایک کم عمر بچی سمجھ رہا تھا وہ تو پوری شراب ہے۔ ہر گزرتے پل کے ساتھ میرے دل میں جذبات کا طوفان ٹھاٹھے مارنے لگا تھا، لیکن میں بہت مشکل سے خود پر قابو پا رہا تھا۔ لیکن پھر ندا نے میرے ساتھ کچھ ایسا کیا کہ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گیا۔ میری اور صبا کی شادی کو 5 سال گزر چکے تھے اور ان 5 سالوں میں ایسا کوئی دن نہیں تھا جب صبا نے میری خدمت میں کوئی کسر چھوڑی ہو۔ میری اور صبا کی پہلی ملاقات کالج میں ہوئی تھی اور ہم دونوں ایک دوسرے کو پہلی ہی نظر میں پسند آ گئے تھے۔ ہم دونوں کی پیار محبت کا سلسلہ بڑھتے بڑھتے شادی تک پہنچ گیا تھا۔ جب میں نے اپنے گھر والوں کو صبا کے متعلق بتایا تو میری ماں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ خاندان سے باہر وہ کسی صورت میری شادی نہیں کریں گی، لیکن میں صبا کی محبت میں اتنا آگے بڑھ چکا تھا کہ واپسی کا کوئی راستہ ممکن نہیں تھا۔ اس کے بغیر تو ایک پل بھی گزارا کرنا مشکل تھا۔ ہم دونوں اپنی ہی محبت میں ساری حدود پار کرتے ہوئے تمام رشتے قائم کر چکے تھے۔ کالج میں جانے کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر واپس باہر نکل جاتے اور کالج کے پیچھے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے ہوٹلوں میں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے۔ میں نے اپنی ماں کو منانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کسی بھی صورت میں اس شادی کے لیے راضی نہ ہوئی اور میں نے صبا کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی۔ جب میرے ماں باپ کو اس بارے میں علم ہوا تو انہوں نے مجھے گھر سے ہی نکال دیا، کیونکہ میں کوئی نوکری نہیں کرتا تھا اور نہ ہی میری کوئی کمائی تھی۔ اور جب صبا کے گھر والوں کو اس بارے میں پتا چلا تو وہ بھی ہماری شادی کے خلاف ہو گئی، اور وجہ یہی تھی کہ میں کچھ بھی نہیں کماتا تھا۔ بہت مشکل سے میں نے صبا کے گھر والوں کو راضی کیا، لیکن صبا کے گھر والوں نے ہم سے ملنا جلنا ختم کر دیا تھا۔
काफी अरसे तक मैं और सबा फाकों वाली जिंदगी गुजारते रहे, लेकिन जैसे ही मेरी नौकरी लगी और मेरे हालात कुछ बेहतर हुए तो सबा ने अपने घर वालों से मिलना जुलना शुरू कर दिया। लेकिन अब वो लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि जब मुश्किल हालात थे तो उन्होंने मुझे नहीं अपनाया था और इसीलिए मैं सबा के घर न जाने के बराबर जाता था, साल में 1 या 2 दफा। इसीलिए मैंने सबा की छोटी बहन निदा को कभी सही से देखा भी नहीं था। ना ही मैं इस बात से वाकिफ था कि वो अब 14 वर्ष की एक खूबसूरत लड़की बन चुकी है। खुदा ने हमें औलाद की नेमत से कई सालों तक महरूम रखा था और बहुत ज्यादा इलाज कराने के बाद अब सबा हमारे बच्चे को जन्म देने जा रही थी। मेरे घर वाले तो थे नहीं, इसीलिए मजबूरन मुझे सबा की माँ को बुलवाना पड़ा और जब हम सबा को अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि सबा को 1-2 दिन अस्पताल में दाखिल रहना पड़ेगा। प्रेगनेंसी के इस अरसा में सबा को बहुत सी बीमारियां हो चुकी थी, इसलिए उसका केस काफी मुश्किल था। सबा के वालिद कहीं शहर से बाहर गए हुए थे, इसलिए सबा की वालिदा ने उसकी छोटी बहन को मेरे पास हमारे घर में छोड़ दिया, क्योंकि वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मैं बहुत अरसे बाद सबा की बहन निदा को पहली दफा देख रहा था और मैं उसको देखकर हैरान रह गया था। मैं तो सबा की खूबसूरती का ही दीवाना था, लेकिन उसकी छोटी बहन तो उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी और उसे देखकर मैं सबा को भूल गया था। निदा ने सबा की गैर मौजूदगी में घर के सारे काम काज बहुत अच्छे से किए और मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि सबा घर में नहीं है। उसने सारे घर को सलीके से साफ सुथरा करके सोने की तैयारी शुरू की तो मैं भी अपने कमरे में चला आया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं जान गया कि निदा आई है। शायद उसे किसी चीज की जरूरत थी, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि निदा तो कुछ और ही इरादा लेकर आई है। पहले तो वो सोफे पर आराम से बैठ गई और कहने लगी कि मुझे बहुत ज्यादा अकेलेपन में खौफ महसूस हो रहा था, क्योंकि ये घर मेरे लिए बिल्कुल नया है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके कमरे में ही रात गुजार लूं। मैंने निदा से कहा कि अच्छा किया जो तुम चली आई, ये तुम्हारा अपना ही घर है, तुम यहाँ आराम से सो सकती हो। लेकिन निदा को यूं नीम बरहना नाइटी में देखकर मेरी नजरें बार बार उसके जिस्म का तवाफ कर रही थी। निदा मेरे चेहरे पर नजरें जमाए बहुत ही तवज्जो से मुझसे बात कर रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे बता रही थी कि जब उसने मुझे पहली बार देखा था तो मैं पहली ही नजर में उसे बहुत अच्छा लगा था। उस वक्त वो सिर्फ 9 साल की थी। वो कहने लगी कि मुझे देखते ही उसे अपनी आपी की पसंद पर रश्क आने लगा और उसे खुशी हुई कि उसकी आपी की किस्मत इतनी अच्छी है। निदा कहने लगी कि उस दिन के बाद से मैं उसके ख्यालों में बैठ गया था और वो यही तसव्वुर करती है कि उसकी जिंदगी में आने वाला शख्स भी बिल्कुल मेरे जैसा ही होगा। निदा मुझसे बात करते करते अपनी नाइटी की डोरी से भी खेलने लगी थी। वो मुझे कह रही थी कि मेरी बड़ी बड़ी आंखें उसके जहन में हमेशा के लिए बैठ गई थी। वो कहने लगी कि उसने कई मर्तबा अपने अब्बा से मेरे लिए झगड़ा भी किया, क्योंकि वो चाहती थी कि उसके अब्बा मुझे माफ करके हमें अपना लें, क्योंकि वो मुझे दोबारा देखने को बहुत बेचैन थी। मुझसे बातें करते करते वो सोफे पर लेट गई और मैं बहुत मुश्किल से उसे नजरें चुराकर अपने फोन में ध्यान लगाने लगा। कमरे का माहौल अचानक ही बहुत गर्म हो गया था। निदा एक जलती हुई आग थी जो मुझे अंदर तक दहका रही थी। मैं तो उसे एक बच्ची समझ रहा था, लेकिन उसकी जवानी तो किसी को भी दीवाना कर सकती थी। थोड़ी ही देर में वो बेचैनी से करवटें बदलने लगी। मेरा ध्यान बार बार भटककर निदा के वजूद पर जा रहा था और जब मैंने उसे बेचैन देखा तो मैं पूछ रहा था कि क्या हुआ है। वो कहने लगी कि ये सोफा बहुत ज्यादा गैर आरामदेह है और मैं इस पर आराम से नहीं सो सकती। ये सुनते ही मैंने उससे कहा कि वो बेड पर आकर सो जाए और सोफे पर मैं सो जाऊंगा। वो जैसे ही बेड की तरफ आई तो मैं उठने लगा। निदा ने फौरन ही मेरा हाथ पकड़कर कहा कि अरशद भाई, आपको तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है, ये आपका अपना ही घर है। मैं एक तरफ लेट जाती हूँ, दूसरी तरफ आप लेट जाएं। मैं निदा की बेबाकी देखकर हैरान रह गया था, लेकिन मैं खुद भी आराम करना चाहता था। सारा दिन सबा के पीछे मैंने अस्पताल में काफी भाग दौड़ की थी, इसीलिए मैं बेड पर एक कोने से होकर लेट गया और अपना फोन चलाने लगा। निदा की मौजूदगी में अपने जज्बात पर काबू पाना मेरे लिए एक मुश्किल मरहला था, जिससे मैं उस वक्त गुजर रहा था।
फोन चलाते चलाते ही मुझे कब नींद आ गई मुझे पता भी ना चला, और जब मेरी आंख खुली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे जिस्म पर हाथ फेर रहा हो। और जब मैं पूरी तरह होश में आया तो मुझे अंदाजा हुआ कि निदा मेरे बहुत करीब लेटी हुई है और उसकी उंगलियां मेरे जिस्म पर हरकत कर रही हैं। मेरे अंदर एक तूफान सा उठने लगा था। निदा जानबूझकर मेरे जज्बात को उभार रही थी। वो अपने दिली जज्बात तो बातों बातों में पहले ही बयान कर चुकी थी कि वो मुझे पसंद करती है, और अब रात के अंधेरे में वो इस तरह मेरे करीब आके ये बात साबित कर रही थी कि उसके दिल में मेरे लिए बहुत कुछ था। मैं एक मर्द था और बहुत कोशिश के बावजूद भी मैं खुद को निदा से दूर ना कर सका, और मैं भी करवट बदलकर उसके करीब हो गया। निदा तो जैसे इसी बात के इंतजार में थी। जैसे ही उसे इल्म हुआ कि मैं उसका साथ देने के लिए तैयार हूँ, वो फौरन ही अपने जज्बात मुझ पर लुटाने लगी, और मैंने भी उसके हर जज्बे की खूब पजीराई की। जब हम दोनों अपना मकसद हासिल कर चुके तो निदा ने अपने फोन में मेरे साथ हमारी कई तस्वीर खींची जिनमें हम दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। हम दोनों ही बेहिजाब थे। मैंने निदा से कहा कि इस तरह की तस्वीर फोन में ना ले, लेकिन निदा कहने लगी कि जब मैं उसके साथ नहीं होऊंगा तो वो मेरे साथ इन तस्वीर को देखकर अपने बीते हुए पलों को याद करेगी। मैं उसकी एक एक अदा पर फिदा हो गया था। वो पूरी तरह अपनी जवानी मुझ पर लुटा चुकी थी। उसका नर्मो नाजुक गुलाब जैसा खिलता बदन मुझे मदहोश कर गया था, और मैं ये तक भूल गया था कि मेरी महबूब बीवी उस वक्त तकलीफ की हालत में अस्पताल में दाखिल है और वो कभी भी मेरे बच्चे को जन्म दे सकती है। निदा के साथ रात गुजारकर मैं ऐसे मसरूर था जैसे कोई किला फतह कर लिया हो, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि यहाँ से मेरी बर्बादी का आगाज होने वाला था। जैसे ही मैं अस्पताल जाने के लिए निकलने लगा, निदा ने मुझे आवाज देकर रोका और मेरे करीब आकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मुझे चूमते हुए कहने लगी कि आप जाते जाते मुझे कुछ पैसे दे जाएं, मुझे बाजार जाना है। निदा की बात सुनते ही मैंने बटुए से हजार के 5 नोट निकाल कर निदा के हवाले किए। मेरे हाथों से नोट लेकर उसके चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कुराहट बिखर गई। मैंने बदले में उसके होंठों को चूमा और घर से निकल पड़ा। मैं सारा रास्ता खुशी से सरशार। जब अस्पताल पहुंचा तो मेरी बीवी सबा की हालत बहुत खराब थी। डॉक्टर ने बताया कि सबा जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रही है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। सबा की माँ भी बहुत ज्यादा परेशान थी, जबकि अस्पताल जाकर मेरी हालत भी खराब हो गई थी। सारा दिन मैं सबा के साथ रहा, लेकिन सबा की हालत पहले से बेहतर ना हुई। डॉक्टर ने कहा कि कुछ दिन सबा को और अस्पताल में रखना होगा। ये सुनकर न जाने क्यों मुझे अजीब सा सुकून महसूस हुआ कि सबा जितने दिन अस्पताल में रहती मुझे निदा के साथ वक्त गुजारने का मौका मिल जाता। मैंने डॉक्टर से कहा कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने मुझे तसल्ली दी। मैं रात तक अस्पताल में रहा और रात के वक्त मैं सबा की अम्मी से ये कहकर घर वापस आ गया कि निदा घर पर अकेली हो गई, आप मुझे वापस जाना चाहिए। क्योंकि अस्पताल में सबा के साथ किसी औरत को ही रुकने की इजाजत थी, इसीलिए सबा की अम्मी का रहना बहुत जरूरी था। मैं जब अस्पताल से घर वापस लौटा तो निदा बहुत ही खुश थी। उसने बहुत सारी खरीदारी की थी और वो मुझे एक एक करके सारे कपड़े पहनकर दिखा रही थी। उसे मुझसे बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं हो रही थी। वो बहुत आराम से मेरे सामने बिना किसी दुपट्टे के बेझिझक घूम रही थी। उसके कपड़े जिस्म पर इस कदर फिट थे कि सब कुछ वहां से नजर आ रहा था। उसका गहरा गला उसकी खुलती हुई रानाइयों को झलका रहा था। वो बार बार मेरे करीब आती और मैं अपनी होश खोने लगता। अचानक ही वो मुझसे पूछने लगी कि मैं सबा आपी की अलमारी खोलकर देख सकती हूँ क्या? मैंने निदा से कहा कि इसमें भला पूछने की कौन सी बात है, तुम्हारी आपी की ही तो अलमारी है। उसने कहा कि चाबी दे फिर मुझे। मैंने उसे चाबी दे दी और वो सबा की अलमारी खोलकर एक एक चीज देखने लगी और सबा जो कपड़े मेरे लिए रात को पहनती वो निकाल निकाल कर मुझे दिखाने लगी और मुझसे पूछने लगी कि इसमें से आपको कौन सा पसंद है। मैंने एक छोटी सी नीली रंग की नाइटी पर हाथ रखा और उसे कहा कि इस सबा पर बहुत जचती है। ये सुनते ही निदा वो नाइटी उठाकर कमरे से निकल गई और जब काफी देर बाद वापस आई तो मेरी आंखें हैरत से फैल गई। वो सबा की नाइटी पहने उससे भी कहीं ज्यादा हसीन लग रही थी। अचानक ही वो मेरे आगे आकर मुस्कुराते हुए पूछने लगी कि ये मेरे बदन पर ज्यादा जच रही है या आप ही पर ज्यादा जचती है। ये सुनते ही मैंने उसे अपनी बाहों में भरा
और बहुत मोहब्बत से उससे कहा कि ये तुम्हारे दूधिया बदन पर बहुत खूब लग रही है। सबा तो ये पहनकर इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी तुम लग रही हो। मैंने उसके हाथ में पकड़ा मोबाइल लेकर साइड पर रख दिया और खुद में उस पर अपनी मोहब्बत लुटाने लगा। उसे उस नाइटी में देखकर तो मैं बिल्कुल ही बेकाबू हो गया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि 14 साल की उम्र में कोई लड़की हुस्न की देवी भी हो सकती है। लेकिन निदा तो हुस्न की सारी हदें पार कर रही थी। उसका पूरा ही बदन बहुत हसीन था और मैं हर गुजरते पल के साथ उस पर हावी होता जा रहा था। सारी रात उस पर अपने जज्बात लुटाने के बाद जब मैं सुबह अस्पताल पहुंचा तो मुझे पता चला कि मेरी बीवी ने अभी अभी एक मुर्दा बच्चे को जन्म दिया है। ये सुनकर तो मेरी हालत खराब हो गई। मेरी बीवी की हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी और डॉक्टर उसे ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। शाम तक सबा की हालत कुछ बेहतर हुई तो उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मुझे अपने बच्चे के इंतकाल का बहुत दुख था। मैं सबा को संभालते हुए घर ले आया। सबा को देखकर निदा का चेहरा उतर गया था। उसने एक अजीब सी नजर सबा पर डाली और कमरे में चली गई। मैंने सबा को कमरे में लाकर लिटा दिया। उसकी अम्मी ने मुझे सबा की दवाइयों से मुतालिक आगाह किया। मैं सबा की अम्मी के साथ बाहर लाउंज में बैठा उनकी बात सुन रहा था कि जब मैंने निदा को सबा के पास जाते हुए देखा, मुझे कुछ खौफ महसूस हुआ, लेकिन मैं जानता था कि निदा ऐसी कोई बात सबा के आगे नहीं कहेगी। थोड़ी ही देर में निदा वापस आई और अपनी माँ से कहने लगी कि चले अम्मी, अब हम घर चलते हैं, और वो दोनों अपने घर वापस चले गए। मैंने निदा को आखिरी बार अलविदाई नजरों से देखा क्योंकि मैं जानता था कि अब हम दोनों का मिलना बहुत मुश्किल है। निदा को जाता देख मैंने एक ठंडी आह भरी थी। थोड़ी देर बाद जब मैं दूध का गिलास लिए अपने कमरे में पहुंचा तो सबा गुमसुम सी बैठी हुई थी। मैंने उससे कहा कि कोई बात नहीं, अगर एक औलाद चली भी गई तो हमें अल्लाह दोबारा औलाद से नवाजेगा। मेरी बात सुनकर सबा ने मुझे बहुत अजीब नजरों से देखा और कहने लगी, जो मैंने खो दिया है उसे दोबारा पाना मुमकिन ही नहीं। सबा के लहजे ने मुझे चौंका दिया था। मैं उसके आगे ही बैठ गया और उसे कहने लगा कि ऐसी बात क्यों कर रही हो। सबा कहने लगी कि निदा मेरी सगी बहन नहीं है, बल्कि वो मेरी फूफो की बेटी है, जिसे फूफो के इंतकाल के बाद अब्बा हमारे घर ले आए थे। लेकिन निदा को बचपन से ही मुझसे बहुत नफरत थी, क्योंकि घर में हर चीज मेरी थी और उसे हर वो चीज चाहिए होती जो मेरे पास होती। अब्बा ने कभी उसे किसी चीज की कमी महसूस न होने दी, लेकिन उसके बावजूद भी वो मुझसे हसद में मुब्तला रही। उसकी नजर हर उस चीज पर होती जो अब्बा मेरे लिए लाते या जिसे मैं पसंद करती। जब मेरी तुमसे शादी हुई तो तुम मेरे घर आना जाना नहीं करते थे और मुझे इस बात की तसल्ली थी कि वो तुम पर अपनी नजरें नहीं जमाएगी। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि वो मेरे हसद में इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि उसने तुम्हें मुझसे छीनने के लिए वो सब कर दिया जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। सबा की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो मुझसे कह रही थी कि निदा ने जाने से पहले मुझे वो सारी वीडियो दिखा दी है और सारी तस्वीर भी दिखा दी है जिनमें हम दोनों एक साथ थे। सबा की बात सुनकर मैं सदमे में आ गया था। निदा ने सब कुछ जानबूझकर एक मकसद के तहत किया था और मैं उसके हाथों खिलौना बन गया था। सबा की आंखों में मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत बाकी बच गई थी। उसने अपनी औलाद भी खो दी थी और शोहर भी। मैं सबा के आगे शर्मिंदगी से सर झुका गया था कि जब सबा ने मुझसे कहा कि वो जाते जाते मुझसे मेरी नीली नाइटी मांग कर ले गई है क्योंकि वो तुम्हें मुझसे ज्यादा उसके बदन पर जचती हुई दिखाई देती है। मुझे लगा था जैसे सबा के लफ्जों ने मुझे जमीन में जिंदा गाड़ दिया हो। वक्ते जज्बात के हाथों में मैं अपनी पूरी जिंदगी हार गया था और अब कभी सबा के आगे नजर उठाकर जिंदगी नहीं गुजार सकता था। निदा ने कुछ ही वक्त बाद मुझे ब्लैकमेल करने का सिलसिला शुरू कर दिया था। वो मुझसे हर बार एक बड़ी रकम का तकाजा करती और मेरे ना देने का कहने पर मेरी तस्वीर वायरल करने की धमकी देती। मैं जिसे 14 साल की एक सीधी सादी मासूम बच्ची समझ रहा था वो दरअसल एक फितना थी जिसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी थी। मेरा और सबा का ताल्लुक बिल्कुल मुर्दा हो गया था क्योंकि सबा अब मुझे सिर्फ और सिर्फ नफरत की निगाह से देखती थी। वक्त लज्जत और मजे ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था।